یہ دیکھیں قربانی بعض اوقات تو واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات سنت ہوتی ہے. کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. سب سے پہلے قربانی یاد رکھیے یہ سنت ہے. کچھ علماء نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے. ٹھیک، یا تو یہ سنت ہے یا تو سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے فرض اور واجب ہونے کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا. عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بالکل واجب نہیں ہے. صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ. اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے یا سنت عمل ہے. کیا معاملات ہے قربانی کے؟ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے کیا گناہ گار ہوگا؟ وہ قربانی چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا معاملات ہے؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب. ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. یہ دیکھیں قربانی بعض اوقات تو واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات سنت ہوتی ہے. واجب اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ کے اندر قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ 11 اور 12 میں قربانی کی تمام شرائط پائی جائیں. یعنی قربانی کے واجب ہونے والی تمام شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جائیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے. وہ شرائط کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پہ قربانی واجب تو نہیں تھی، شرائط اس میں نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے فرض کر لیں، اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر، اور وہ اگر قربانی کا جانور خرید کے لے آتا ہے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے. اور ان کے علاوہ جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ نفل یا سنت ہوتی ہے. قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا. مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا. یہ ہے شرعی مسافر. اب جب تک یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ جاتا یہ مسافر رہے گا. پھر جب اس مقام پر پہنچ جائے تو دیکھا یہ جائے گا اگر وہاں پر کسی ایک شہر میں ایک سٹی میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہو گیا، مسافر نہ رہا. اور اگر 15 دن سے ٹھہرنے کی نیت کی ہے، کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو پھر وہ مسافر ہی رہے گا. جیسے 13 دن 14 دن کی نیت کر لی، یا کسی ایک سٹی میں 15 ڈیز نہیں ٹھہر رہا بلکہ مختلف شہروں میں ہے، 3 دن یہاں، 5 دن وہاں، 6 دن وہاں، 8 دن وہاں. اب ان کو اگر جمع کریں تو 15 دن سے زیادہ ہو جائیں، لیکن علیحدہ کریں تو کسی بھی سٹی میں 15 دن تک ٹھہرنے کی نیت نہیں کی تو یہ شرعی مسافر رہے گا، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی. اور آخری ہوتا ہے مالک نصاب ہونا. قربانی کے مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں اگر رقم یا اتنی مالیت کا سامان موجود ہے اور وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، زکوٰۃ تو اس پہ نہیں بنے گی لیکن قربانی واجب ہو جائے گی کہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی مالیت رکھتا ہے. یا آپ کے پاس فرض کر لیں 48-50 ہزار روپے کیش ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جیسے بینک اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں کہ میری والدہ. تو آپ نے مفتی اکمل صاحب کو موقف سن لیا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل سے تعلق ہے جن کا الیاس قادری صاحب. ان کا بھی موقف سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. پچھلے 24 سال سے زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال رکھتی ہیں. لا علمی کی وجہ سے انہوں نے پہلے کبھی قربانی نہیں کی تھی. میرے والد اپنی قربانی کرتے تھے. اب کیا میری والدہ کو 24 بکریوں کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرنی ہوگی، اور کیا بکری کی قیمت گزشتہ سالوں کے مطابق ہوگی یا موجودہ وقت کے مطابق؟ بکری کی قیمت ہی دینا ہوگی 24 سالوں کی، اور ہر سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اب ان کو حساب خود نکلوانا پڑے گا کہ ہر سال کی قیمت کیا بنتی ہے، تو اس سالوں کے حساب سے 24 سال کی ان کو بکریوں کی ہر سال کی ایک بکری کی قیمت ادا کرنا ہوگی. جس سال قربانی نہیں کی تھی، جی سپوز کرو 10 سال پہلے نہیں کی تھی، اب توفیق مل رہی ہے کہ احساس ہوا، توبہ تو کرنی ہے کہ واجب ترک ہوا.
और अब उसकी कीमत आप फरमा रहे हैं उस वक्त जो बकरी की कीमत थी। जी, दूसरी बात इसमें ज़कात का निसाब निगरानी शुरा ने बयान किया है, तो ज़कात का निसाब अलग है और बहरहाल जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसका निसाब अलग है और क़ुरबानी का निसाब अलग है। तो अगर ज़कात वाजिब हो रही है तो क़ुरबानी बदरजा वाला उसके ऊपर वाजिब होगी। ठीक है, आपने मदनी चैनल का भी मौक़िफ़ सुन लिया। चलिए मुफ्ती तारिक मुर्शिद साहब की तरफ चलते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से कि क़ुरबानी फ़र्ज़ अमल है कि सुन्नत अमल है, अगर छोड़ने वाला गुनाहगार होगा नहीं होगा। क्या वाजिब है या सुन्नत है, तो इस बारे में भी दोनों राय मिलती हैं उलमा की। जो उलमा कहते हैं सुन्नत है वो भी आम सुन्नत नहीं मानते बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जो नहीं करेगा काबिल मलामत होगा। सही है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की राय के मुताबिक ये वाजिब है और इसकी दलील वही है कि पहली बात तो ये कि इबादत है और इबादत में एहतियात। सॉरी आप डिस्टर्ब हो होंगे, इसके बैकग्राउंड नशीद जो चल रही है, लेकिन ये मेरी तरफ से नशीद नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी तरफ से आपने म्यूज़िक लगा दिया है, हमें समझ ही नहीं आ रही वीडियो। ये जो वीडियो जहाँ से ली गई है वहाँ से ऑलरेडी ये म्यूज़िक इसके बैकग्राउंड में नशीद लगी हुई थी। एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है क्योंकि एहतियात इसी में है कि इसको अगर वाजिब करार नहीं देते तो बहुत से लोग कुर्बानी का फरीज़ा छोड़ सकते हैं और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि क़यामत में उनको गुनाह न मिले। तो इसलिए एहतियात के पहलू को तरजीह जाएगी। और मजबूत दलील इमाम हनीफा की कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन यज़हिय फलम यज़हि फला यक़रबन मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश थी और उसने कुर्बानी नहीं की वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत फटके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा रहे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने कुर्बानी नहीं की अपने दौर खिलाफत में, इससे पता चलता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये दलील इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्कीन थे, गरीब थे, अगरचे मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन ये उनकी एक क्वालिटी थी कि इतने लाखों मुरब्बा मील के मालिक होने के बावजूद वो पेवन ज़्यादा कपड़े पहनते थे। तो साहिब इस्तिताअत पे कुर्बानी वाजिब है। ये दोनों हजरात बड़े थे मगर कुर्बानी नहीं की इन्होंने, जैसे कि रिवायत में आता है उसकी वजह इस्तिताअत ना होना। तो इस्तिताअत अगर नहीं है तो फिर कुर्बानी लाजिम नहीं है, बल्कि अगर आप कर्जा लेके कुर्बानी करोगे और ख़तरा है कि मैं कर्जा अदा नहीं कर सकता तो फिर तो जायज़ ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि दूसरों का हक दबा के आपके लिए इबादत को की बजावरी ये ठीक नहीं है। इसकी फजीलत क्या है कुर्बानी की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बकरीद के दिनों में या अय्याम नहर में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है और हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाते हैं। ये कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है। तो आपने मुफ्ती तारिक मुर्शिद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, आप चलते हैं एडवोकेट फैसल साहब की तरफ, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सबसे पहले कुर्बानी याद रखिए ये सुन्नत है, कुछ उलमा ने इसको सुन्नत मुअक्कदा कहा है। ठीक, ये या तो ये सुन्नत है या तो सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, इसके फर्ज और वाजिब होने के ताल्लुक से उलमा ने इख्तिलाफ किया, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा के ताल्लुक से अखवाल आपको कसीर अखवाल मिलेंगे। कुछ उलमा ने इसको जो है वाजिब भी कहा है। बहरहाल वाजिब होने की जो इनकी दलाइल है इंशाल्लाह वो भी रखूंगा, लेकिन जो बात सही और दुरुस्त है वो ये है कि कुर्बानी सुन्नत है या सुन्नत मुअक्कदा है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा ये अब कुर्बानी कौन करे? अगर ये सुन्नत तो सुन्नत मुअक्कदा है तो कौन करे? कुर्बानी हर वो शख्स करे, क्योंकि सवाल बहुत होता है तो ज़कात कौन दे, हज कौन करे, कुर्बानी कौन करे? कुर्बानी हर वो शख्स करे जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो। इसके लिए कोई साहिब निसाब होना, ज़कात देने वाले होना, फला होना जरूरी नहीं है। ठीक, हत्ता कि आप नहीं भी कमाते और अल्लाह ने दिया तो आप कुर्बानी कीजिए। कभी होता है बाबा अजदाद से इतना माल दौलत मिलती है कि जरूरत नहीं, इंसान कमाता नहीं, तो क्या कुर्बानी नहीं करेंगे? तो कमाने वाला होना, ज़कात देने वाला कोई शर्त नहीं है, जो कुर्बानी कर सकता है वो कुर्बानी करे। बिल्कुल सही है, इसलिए कि बड़ा महबूब तरीन अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत इब्न माजा की सही हदीस आपने फरमाया कि जो कुर्बानी की वुसअत और इस्तिताअत रखते हैं वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में नमाज को ना आए। है तो आपको करना है ये, आप इसको इस अमल को छोड़ नहीं सकते आप कि ये कैसा है करूँ नहीं, करना है। अगर इस्तिताअत है तो आपको करना है ये अमल, याद रखिए। इस अमल को नहीं सकते अगर आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो छोड़ नहीं सकते। अब कुर्बानी कौन करे? जो करने की ताकत रखता है वो करे।
मुझे ऐसा लगता है इस महीने मेरा इतना पैसा बच जाएगा कि मैं एक हिस्सा जानवरों में ले सकता हूं जो इसकी कीमत 1400-1500 की करीब बहरहाल 2000 तक शायद जाती होंगी आज की उसमें, ठीक हो, मतलब 1100-1200 से लेकर 2000 के बीच में कीमतें जितनी भी जानवरों की, वो 7 हिस्से होते हैं। तो बहरहाल ये पुराने वीडियो है, इस वजह से पुराने हिस्से की बात हो रही है। अभी करंट हिस्सा जो महंगा है मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार तक का होता है पाकिस्तान के अंदर। आप उसको कर गुजरे, ठीक, जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो वो कुर्बानी कर गुजरे। ईद कुर्बान की कुर्बान। अच्छा, आपने ये एडवोकेट फैज सैयद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ चलते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, तो शुरू करते हैं। कुर्बानी वाजिब है या कि सुन्नत? ईद कुर्बान की कुर्बानी जो है ऑलमोस्ट उम्मत में इत्तफाक है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, बिल्कुल वाजिब नहीं है। सिर्फ हनफी थोड़े से इस मामले में सख्ती का शिकार हुए हैं, और वो सख्ती उनकी हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज में देखा जाए तो किसी हद तक जस्टिफाई भी है। सुनन इब्न माजा में हदीस है, अल मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद में है, इमाम हाकिम ने भी इसे सही कहा, इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़क़त की कि जो लोग इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते वो हमारी ईदगाहों से दूर रहे। तो इसमें चूँकि एक वईद है, इसकी वजह से इमाम हनीफा का ये मौक़िफ़ है कि ईद कुर्बान की कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हम पहले भी आपको बताते हैं कि अहादीस को आपने सहाबा के फ़हम के मुताबिक देख के चलना है, सलफ़ के फ़हम के मुताबिक नहीं, सहाबा के फ़हम के मुताबिक। सलफ़ तो इमाम हनीफा भी हैं, उन्होंने फ़हम गलत ले लिया है, तो सलफ़ के फ़हम से मुराद है सहाबा का फ़हम। बिल्कुल सही। सहाबा का फ़हम ये है कि मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में और सुनन अल कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मौजूद है कि सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाज़ औक़ात जानबूझ के ईद कुर्बान की कुर्बानी छोड़ दिया करते थे ताकि लोग उसे वाजिब ना समझ लें। तो ईद कुर्बान की कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं। अहले तशय्युअ के यहाँ भी ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं। रहा अहदीस में से ये एक हदीस है, इस हदीस के ऊपर भी हर सेहत में इख्तलाफ है, बहरहाल ऑलमोस्ट हसन दर्जे की तो ये मानी जाती है रवायत। तो वो है नबी इस्लाम ने तरगीब दिलाने के लिए, जैसे कई एक मौक़ों पे आप इस्लाम का जिस तरह फरमान है कि यहूदो नसारा की मुखालफत करो, दाढ़ियों को रंगो, ये तरगीब दिलाने के लिए। वरना तो इस हदीस को रवायत करने वाले जाबिर बिन अब्दुल्लाह और उनसे भी बढ़ के मौला अली अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी नहीं रंगी, सफ़ेद ही रखी है, जवाज़ की हद तक ये कायल मतलब जायज़ है। तो ये वाजिबियत के दर्जे में नहीं है, सुन्नत के दर्जे में। लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उसे ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यानी जब से इस एतबार से यानी साहिब इस्तिताअत हूँ कि मैंने खुद से कमाना शुरू किया है, यानी 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरी तो किसी साल में भी कुर्बानी मिस नहीं हुई है। सो दोस्तों, आपने वीडियो सुनी, सारे मौक़िफ़ आपने सुन लिए उलमा कराम के कि इस हवाले से क्या कहा उन्होंने। फ़र्ज़ है कि सुन्नत है, तो फ़र्ज़ नहीं है यानी कि वाजिब नहीं है, सुन्नत मौक़िदा है और सबको करनी चाहिए ये अमल, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक आपकी बलाएँ टलती हैं, आपकी मुश्किलात ख़त्म होती हैं और आपको सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएँ। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया सबका तू हो नमा।